اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک بحری جہاز میں بالین قید ہوتا ہے اور جا کر ایک دم سے اپنی آنکھوں پر سے پٹی ہٹاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں بھی زنجیروں سے بندھے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے میں کہاں ہوں تم مجھے کہاں لے آئے ہو۔ اسلام صلاح الدین بھی وہاں داخل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں تم کہاں ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا بالین، تم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہر قیدی کی طرح محفوظ و فکر نہ کرو۔ تو بالین کہتا ہے ہماری دوستی کے حقوق صرف یہیں تک تھے، کیا ایسا ہے؟ جواب میں صلاح الدین بھی کہتے ہیں یقین رکھو کہ قیدی ہونا تمہارے لیے زیادہ محفوظ ہے، جب تک تم مسلمان نہیں ہو جاتے ہمارے دوست بننے کا امکان نہیں ہے بالین۔ تو بالین کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ تمہیں وہ قسم زیادہ پسند آئے گی جو ہم سورما بننے کے لیے کھاتے ہیں امیر صلاح الدین، کسے معلوم کہ ایک دن تم بھی سورما بننے کا فیصلہ کر لو۔ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں اسلام جب مجھے اڑنے پر مہیا کرتا ہے اسے چھوڑ کر نہ ہموار سیڑھیوں سے گزرنا پسند کروں گا، کیا ایسا ہے؟ جواب میں بالین کہتا ہے تم نے جو کچھ کیا وہ اس فوجی کے شان نشان نہیں ہے جو ایماندار ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر تم مجھے میدان جنگ میں قید کرتے تو میرے پاس کہنے کو کچھ نہ ہوتا، لیکن ارد گرد کوئی جنگ نہیں ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں جس دن سے کچھ پہ حملہ کیا وہاں خون بہایا تب سے یہ جنگ ہی ہے، اور یہ جنگ جب تک ہم کچھ فتح نہیں کر لیتے ختم نہیں ہوگی، اور بالین تم اس دن تک کے لیے بطور قیدی، یہاں تک کہ تم اس جنگ کے قیدی ہو جو کچھ کی فتح کے بعد بھی ختم نہیں ہوگی۔ تم یہاں ناراض سورما کے طور پر آئے تھے لیکن اب ایک ایسے آدمی میں تبدیل ہو گئے ہو جو ہر ناجائز حربے کو استعمال کر سکتا ہے۔ تو بالین کہتا ہے یہ جو تم نے کیا یہ غنڈہ گردی ہے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں یقین رکھو کہ ہم نے غزہ میں دیکھا کہ کس نے غنڈہ گردی کی، تم نے بزدلانہ منصوبے بنانے سے گریز نہیں کیا، لیکن میں تمہارے لیے میدان کو کھول رہا ہوں، تمہارے لیے اور اس بادشاہ کے لیے جس کے تم تابع ہو۔ وہ خط جس میں نے اپنی شکایتیں پیش کی ہیں کچھ پہنچنے والا ہے۔ کچھ میں مالک کے خط لہراتے ہوئے غصے میں کمانڈر سے کہتا ہے کیا تم جانتے ہو یہاں کیا لکھا ہے؟ میں تمہاری زمینوں تک آیا یہ کافی نہ تھا، میں نے تمہاری فصیلیں عبور کی، جب وہاں پہنچا میں نے تمہارے محل کے محافظوں کو عبور کیا، یہ کافی نہ تھا، جس کمرے میں بادشاہ سو رہا تھا وہاں تک داخل ہوا، میں چاہتا اسے مار سکتا تھا لیکن ابھی کے لیے نہیں، میں نے اس کی جان بخش دی ہے، یہاں جو لکھا گیا ہے وہ یہی ہے، اب یہ سب کچھ ہونے کے بعد میں تمہاری جان بخش دوں اس کے لیے کوئی ایک وجہ بتاؤ، ہو سکتا ہے تم میں سے کسی نے کیا ہو، شاید میرے تابع ہونے والا میرا نہیں بلکہ سلطان نور الدین کا ہو، وہ اس کی وفاداری کی بیعت کرنے والا غدار ہو۔ تو ولیم کہتا ہے عزت ماں بھی یہ سب کچھ ناممکن ہے۔ تو مالک کہتا ہے یہ ناممکن نہیں ہے ولیم، ناممکن نہیں ہے۔ لڑکا کہتا ہے یہ واضح ہے کہ بہت بڑی حفاظتی کمزوری ہوئی ہے، اندر کے تمام محافظوں اور ملازموں کو فارغ کر دیا گیا ہے محترم بادشاہ۔ مالک کہتا ہے سب کچھ ہو جانے کے بعد اٹھائے جانے والے اقدامات کی کیا اہمیت ہے لڑکائی، سب کے سب نکل جاؤ، باقی سب چلے جاتے ہیں۔ اور مالک ولیم کو روکتے ہوئے پوچھتا ہے قاہرہ سے آنے والی گندم کے بارے میں کوئی خبر ہے؟ تو ولیم کہتا ہے وہ جلدی کچھ میں ہوگی۔ اسلام اسپائی وہاں پہ آ کر خط دیتے ہوئے کہتا ہے عزت ماں قاہرہ سے خط آیا ہے۔ مالک خط کھول کر پڑھتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے تم نے تجارت کے بہانے مصر میں جھڑیں پکڑنے کے لیے جتنے بندے بھیجے ہیں ان میں سے زیادہ تر اور ان کا سربراہ جو ذمہ داری پہ مامور ہے لارڈ بالین میری قید میں ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ انہیں رہا کیا جائے اور زندہ واپس بھیج دیا جائے فوراً سے پہلے مصر سے واپس چلے جاؤ، اگر تم اس کے برعکس کرتے ہو اور اپنے امدادی دستے بھیجنا جاری رکھتے ہو اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہوگا۔ خط پڑھ کر مالک کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے امیر صلاح الدین شام میں صلاح الدین ایوبی کا خط سلطان کو دیتا ہے۔ سلطان خط کھول کر پڑھتے ہیں تو شیر کو کہتے ہیں ایک تو کچھ سے آنے والے امدادی دستے کو قید کیا ہے اور ساتھ میں بادشاہ کی طرف سے مصر میں جھڑیں پکڑنے کے لیے بھیجے گئے بالین کو بھی قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین کا کہنا ہے کہ میں حرکت کرنے کے لیے آپ کے حکم کا منتظر ہوں۔ میدود کہتا ہے میں بھی اس رائے سے اتفاق کرتا ہوں، جب موقع ہمارے ہاتھ میں ہے میں کہتا ہوں کہ ہمیں شہوار کو رون دینا چاہیے۔ خط پڑھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں صلاح الدین کی بھی یہی رائے ہے، اب تیر کمان سے نکل چکا ہے اسے ہم روک نہیں سکتے یہ کہہ رہا ہے۔ تو یاروکی کہتا ہے شہوار جس نے ابھی کے لیے سلیمیوں کی چھڑی گرا دی ہے وہ آسان لقمہ ہے، لیکن بادشاہ مالک یہی حساب کتاب لگا کر فوج بھیج سکتا ہے، ایک تو مصر اور دوسرا گندم کے سرما جو کھو گئے ہیں، ہم نے اسے بہت تکلیف دی ہے، وہ اس سے دستبردار نہیں ہوگا۔ یہ سن کر سلطان پوچھتے ہیں ہم نے کیا وہ گندم فضول میں لی ہے یاروکی؟ اس کی فوج کو اس وقت فاقہ کشی کا سامنا ہے، وہ اس معاملے کو حل کرنے سے پہلے کوئی حرکت نہیں کر سکتا، بھوکی فوج حرکت نہیں کر سکتی۔ تو شیر کو کہتے ہیں اگر ہم تیزی سے مصر کی جانب جاتے ہیں تو ان کے حرکت میں آنے سے پہلے شہوار کا حساب کتاب بند کر سکتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور پھر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لشکر تیار کرو، مصر کو فتح کرنے کا وقت آ گیا ہے، مگر اس بار پچھلی بار کی طرح سر جھکا کر واپس مت آنا، تم جس دن مجھ سے معافی حاصل کر سکتے ہو وہ آج کا دن ہے۔ صلاح الدین کو لشکر کے آنے کی اطلاع دو اصفہانی قاہرہ میں شہوار کامل سے کہتا ہے صلاح الدین نہیں رکنے والا، اس نے گندم قبضے میں لے لی ہے، اس نے بالین کو قید کر لیا، اب اور کیا بچا ہے؟ تو کامل کہتا ہے بابا ہمیں عقل سے کام لینا چاہیے۔ جواباً شہوار کہتا ہے عقل رکھنے کے لیے پہلے مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ہے، اگر کافر ہمیں نیچا دکھاتے ہیں نہ میری جان محفوظ رہے گی نہ تخت، اس لیے میں جوہر وہاں آتا ہے۔ شہوار سے پوچھتا ہے مجھے بتاؤ جوہر صلاح الدین کی جانب سے چھوٹا ہی صحیح کچھ سراغ ملا ہے تو مجھے بتاؤ، مگر جوہر کہتا ہے محترم وزیر بدقسمتی سے نہیں ملا، ہم نے ہر ایک کونا چھان مارا مگر کچھ نہیں ملا۔ شہوار غصے سے کہتا ہے وہ ہوا بن کر اڑ گئی کیا ایسا ہے؟ اچھا تو قاضی فاضل؟ جوہر کہتا ہے اس کی جانب سے بھی کوئی خبر نہیں ہے۔ شہوار کہتا ہے یقیناً اس نے صلاح الدین کی پیروی کی ہوگی، دعا کرتے ہیں کہ مالک ہماری مدد کی اپیل کا جلدی سے جواب دے دے۔ کہاں ہو صلاح الدین، تم کہاں ہو؟ ادھر جہاز میں صلاح الدین بھی بالین سے کہتے ہیں تم اپنے آپ کو یہاں گھر جیسا محسوس کر سکتے ہو، ہم کسی دور پرے کی جگہ پہ نہیں ہیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی بالین کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ وہ ایک بحری جہاز میں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ حیران ہوتے ہوئے کہتا ہے یہ بحری جہاز کہیں یہ جگہ؟ تو صلاح الدین بھی کہتے ہیں تمہیں اس جہاز پہ قید رکھا ہے جو تجارت کے حوالے سے سلیبیوں سے وابستہ ہے، اس لیے مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ بالین غصے سے کہتا ہے جلد یا بدیر انہیں اندازہ ہو جائے گا تم پکڑے جاؤ گے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں دریائے نیل صرف مصر کے افسانوں کو نہیں چھپاتا بالین۔ بالین کہتا ہے مان لیا کہ تم نے ہمیں اور ہمارے سپاہیوں کو ختم کر دیا، لیکن لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ کیا تم کچھ کے لوگوں کو بھوک سے مار دو گے؟ جواباً صلاح الدین بھی کہتے ہیں ہم کچھ کے لوگوں کا تم سے زیادہ خیال رکھتے ہیں، جس عوام پر تم نے ظلم کیا اسے ہماری رحمت سے حصہ ملا ہے، اس وقت ہر گھر میں کھانا پک رہا ہے، سلطان نور الدین نے وہ گندم لوگوں میں تقسیم کی۔ بالین کہتا ہے کیا یہ بلائی ہے؟ ہرگز نہیں، اس کا واحد مقصد صرف اور صرف بادشاہ کو نیچا دکھانا ہے اپنے لوگوں کے سامنے۔ صلاح الدین اس بار تم بہت آگے نکل گئے ہو اور تم اس سے بچ نہیں سکتے۔ صلاح الدین بھی کہتے ہیں جو بہت آگے نکل گیا ہے وہ تم ہو، نتیجہ جلد واضح ہو جائے گا، لیکن اب ہمیں فوری طور پر جہاز کے ساتھ حرکت میں آنے کی ضرورت ہے۔ بالین کہتا ہے گزرگاہ بہت سخت ہے، طویل عرصے سے کسی کو
को जाने की इजाजत नहीं है, खास करके अब वो किसी को हिलने नहीं देंगे। जवाब में सलाउद्दीन ये भी कहते हैं तुम इस वक्त सुलेबी नुमाइंदे के तौर पे हो, शहर के उन चंद अफराद में से हो जिन्हें इम्तियाजी हैसियत हासिल है बालेन, यानी तुम्हारे पास वो मालूमात है जिनकी मुझे जरूरत है। बालेन कहता है मिस्र के तुम्हारे उस काजी दोस्त का क्या हुआ जो तुम्हारे लिए हर हद से गुजरा? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं काजी फाजिल तिजारती बहरी जहाजों को दी गई खुफिया गुजरने की इजाजतों से वाकिफ नहीं होंगे। बालेन पूछता है सलाउद्दीन क्या तुम वाकई सोचते हो कि मैं तुम्हें ये बताऊंगा? तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं दरिया नील से निकलने के लिए मुझे गुजरगाह के खुफिया अल्फाज की जरूरत है और तुम्हें मुझे वो बताने होंगे। बालेन कुछ में लड़काई चातियों से कहता है बालेन ने मिस्र में उसे दी गई जिम्मेदारी को नाकाम बना दिया है। ये सुनकर चातियों हंसते हुए कहता है कैद होकर वो भी उस मुसलमान के हाथों में जो उसका दोस्त था। लड़काई कहता है कुछ की बादशाही की इज्जत को बचाना तुम्हारा फर्ज होगा चातियों, तुम मिस्र जाओगे? चातियों पूछता है मगर बादशाह मालिक क्या कहेंगे? तो लड़काई कहता है वो मान जाएंगे तुम जब बालेन का नाम निशान मिटा रहे होगे। मैं गंदम के बहरान से फायदा उठाऊंगा, कुछ को भूख से मिटाने वाला जांबाज बनना, लेकिन उसके लिए मुझे लड़कियों की जरूरत होगी। चातियों पूछता है तुम उसे जिंदान से कैसे निकालोगे? तो लड़काई कहता है मैं नहीं बल्कि बादशाह मालिक अपने दामाद को आजादी देगा, जो आजाद तो होगा मगर मुर्दा हालत में। यह सुनकर चातियों कहता है मैं समझ गया, मैं बालेन को खत्म करके एबलेन जाऊंगा, तुम ज्यूम को खत्म करके शहजादी को हासिल करोगे और उसके बाद कुछ को। उधर हम देखते हैं कि सहरा से लश्कर के साथ शेर को आगे बढ़ रहे होते हैं और आगे बढ़ते हुए वो शहवार को शिकस्त देने का मंसूबा बना रहे होते हैं। कुछ में चातियों की मौजूदगी में लड़काई बादशाह मालिक से कहता है जंगियों ने जो कुछ किया है वो वाज़ेह तौर पे ऐलान जंग है। तो चातियों कहता है लड़काई ठीक कह रहा है, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बालेन को उनके हाथों से बचाकर आपके पास ला सकता हूँ और अमीर सलाउद्दीन को इसका जवाब बजाते खुद भी देना चाहता हूँ। हिमालय कहता है शहवार को यकीन है कि जंगी वहाँ जाएंगे, उसने मदद मांगी है, इस मदद के एवज वो जिस सोने की पेशकश कर रहा है वो हद से ज्यादा है, लेकिन सबसे अहम बालेन को कहाँ रखा गया है, जगह तलाश करके उसे बचाना है। जहाज में बालेन सलाउद्दीन भी से कहता है तुम जो कुछ कर लो मैं तुम्हें मालूमात नहीं दूंगा। सलाउद्दीन भी कहते हैं देखो बालेन मैं किसी भी सूरत कायरा तो जाऊंगा, चाहे समुद्री रास्ते से या जमीनी रास्ते से, अगर तुम मुझे मालूमात बताते हो तो मेरा रास्ता मुख्तसर कर दोगे और ये सब तुम जिंदा रहने के लिए करोगे। तुम जब दरवाजे पर पहुंचोगे तो मिस्र ना आने की शर्त पर मैं तुम्हें वहां से आजाद कर दूंगा कुछ के लिए, मगर इसके बावजूद भी बालेन मालूमात देने से इनकार कर देता है। तो सलाउद्दीन ईवी को बहुत गुस्सा आता है। कुछ में लड़किया मालिक से कहता है चातियों को वहाँ भेजने का अच्छा फैसला होगा। तो मालिक कहता है बिल्कुल, अगर हम उन्हें कीमत अदा करने पे मजबूर नहीं करते तो वो मजीद आगे जाने से नहीं हिचकिचाएंगे। लड़किया कहता है इसके अलावा मेरे पास गंदम के मसले को हल करने के लिए भी एक राय है, कब्रस। हमारे और हमारी फौज के लिए जिस गंदम की जरूरत है हम उसे कब्रस। बहरी जहाज में सलाउद्दीन ईवी बालेन से कहते हैं मैंने तुमसे कहा था कि इस रास्ते से पलट जाओ, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अगर मुसलमानों की हिफाजत के बारे में कुछ है तो मेरी आंखें उसके सिवा कुछ नहीं देखती। अब भी अगर तुम मुझे मालूमात नहीं बताते, अगर वो बातें जो मैंने खत में लिखी हैं वो पूरी नहीं होती, अगर सुलेबी फौज और ताजिर मिस्र से दस्तबरदार ना हुए, मैं अपनी बात को पूरा करूंगा। बालेन कहता है मुझे कुएं के नीचे की तुम्हारी बेबस हालत याद आ रही है, लोग कितनी जल्दी भूल जाते हैं। सलाउद्दीन भी कहते हैं वो हिसाब बंद हो चुका है बालेन, हम हर चीज को अल्लाह की जानिब से तसव्वुर करते हैं और वसीला बनने वालों के मशकूर होते हैं। मैंने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया, लेकिन दुश्मन के सफ में शामिल होने का इंतखाब तुमने किया। तुमने जिसको रद्द किया अब उसी से आजमाए जाओगे और अब ये तुम्हारा कुआं है, लेकिन जान लोगे अब से मैं तुम्हारी मदद करने वाला नहीं हूँ। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन भी चले जाते हैं और बालेन गुस्से में जंजीर को देखने लग जाता है। कुछ में मालिक कहता है ये सच है कि कब्रस में कसीर मिकदार में गंदम मौजूद है, लेकिन मेरे साथ उनके ताल्लुकात को देखते हुए वो ये एहसान नहीं करेंगे लड़काई। तो लड़काई कहता है आपने ठीक कहा इज्जत माब, लेकिन आपके दामाद लार्जियोम, हम सब कब्रस में उसके असर रसूख को जानते हैं। मुझे लगता है कि लार्जियोम अपनी आजादी के बदले ये फर्ज बखुशी पूरा करेगा। ये सुनते साथ ही मालिक सोच में पड़ जाता है। कायरा में शमसा खवातीन के साथ बहुत परेशान खड़ी होती है और बाहर सुलेमी को देखते हुए कहती है ये सब कैसे खत्म होगा, फौजी हर जगह मौजूद है। गुलजारा तो गुलजारा कहती है उन्होंने शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए हैं और अमीर सलाउद्दीन को हर जगह तलाश कर रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। शमसा उन दोनों को पीछे हटाते हुए दरवाजे की जानिब बढ़ती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो बाहर काजी फाजिल होते हैं जो अपने चेहरा आया करते हुए शमसा को पुकारते हैं। कुछ में मालिक खड़े होकर कहता है फिर क्या करने की जरूरत है, ये वाज़ेह है। चाहती हूँ अपने बेहतरीन फौजियों के साथ एक पेश की दस्ता बनाओ और जल्दी से मिस्र पहुंचो। आपकी तरजीह बालेन और हमारे गिरफ्तार हुए फौजियों को बचाना है। फिर सुल्तान नूरुद्दीन के कीमती सलाहुद्दीन को मुर्दा या जिंदा मेरे पास लेकर आओ। तो चाहती कहता है आप बेफिक्र रहें, वो सर फिर आमिर अपने किए की भारी कीमत अदा करेगा। हिमालय कहता है जब आप वहाँ जाएं तो पहले कैरा की काउंट्स महिला को तलाश करें, वो मुसलमानों के बेस में कैरा के बाजार में मौजूद है, वो सलाहुद्दीन को तलाश करने में आपका साथ देगी। ये सुनकर चाहती लड़काई की जानिब देखने लग जाता है। फिर हिमालय विलियम से कहता है लार्जियोम को जिंदान से रिहा करो, मैं उससे बाहर मिलना चाहता हूँ। कायरा में काजी फाजिल शमसा से कहते हैं आपके लिए इस घर में रहना महफूज नहीं है, आपको किसी महफूज जगह पे जाने की जरूरत है जहाँ वो आपको ढूंढ ना सकें जब तक कि हर चीज पर सुकून ना हो जाए। शहवार की पहली नजर इसी जगह पे जाएगी। शमसा कहती है काजी फाजिल में क्यों छुपूंगी, शहवार को मेरे साथ कोई मसला नहीं है। तो काजी फाजिल कहते हैं शहवार आप से बाहर है शमसा, अमीर सलाउद्दीन के करीबी किसी को भी उसके गुस्से की आग में जलना पड़ सकता है। तो शमसा पूछती है मेरी अमीर सलाउद्दीन के साथ कैसी कुर्बत है कि वो गुस्सा हो जाए। काजी फाजिल कहते हैं लैला और गुलजारा को अपने साथ ले लें, उस जगह जाए जहाँ मैंने कहा था, यही बेहतरीन तरीका है। शमसा कहती है वो मुसलमानों के बेस में मौजूद औरत क्या उन्होंने उसे खुद से यहाँ जासूस के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए भेजा था। जवाब में काजी फाजिल कहते हैं नहीं, वो यहाँ अमीर सलाउद्दीन को कत्ल करने आई थी। यह सुनकर शमसा बहुत परेशान हो जाती है और काजी फाजिल फिर से कहते हैं उस जगह जाओ जहाँ मैंने कहा था। यह सुनकर शमसा कहती है ठीक है, लेकिन उससे पहले एक जगह है जहाँ मुझे जाना है। तो काजी फाजिल कहते हैं मगर होशियार रहना। ये कहते साथ ही काजी फाजिल चले जाते हैं। कुछ में लार्जियोम बाहर घूम रहा होता है। विलियम उसकी जानिब बढ़ते हुए कहता है आजादी की सरजमीन, लेकिन जमीन हम जहाँ भी हैं आजादी के नज़ारे के साथ एक बहुत बड़ा जिंदान है। लार्जियोम से कहता है तो आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं जिंदान से रिहा हो गया हूँ, ऐसा ही है ना विलियम। तो विलियम कहता है खुशकिस्मती से इस जमीन पर हमारी कैद हमेशा के लिए नहीं रहेगी लार्जियोम, इसलिए मैं मालिक वहाँ आता है और आगे बढ़ते हुए लार्जियोम से कहता है मुझे उम्मीद है कि वो दिन जो आपने जिंदान में गुजारे होंगे आपके लिए एक अच्छा सबक रहे होंगे। तो लार्जियोम कहता है यकीनन इज्जत माब, मुझ पर भरोसा करने और मुझे एक नया फरीजा सौंपने का शुक्रिया। मालिक उसे कहता है अपनी तैयारियां फौरन मुकम्मल करो, लाड़काई एक खुसूसी फौजी दस्ते के साथ आपके साथ जाएगा और प्रिंस बाल्डोन भी, इसने आपके साथ जाने का बहुत इसरार किया। यह सुनकर लाड़काई परेशान होते हुए कहता है ये हमारे शहजादी के लिए
लिए शायद महफूज ना हो, मगर इमाले कहता है ये बड़ा हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि ये कब्र को देखे और उन मुलाकातों का मुशाहिदा करे जो आप वहाँ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप इसकी हिफाजत करेंगे। लड़ गए। उधर शेरको यारोकी और लश्कर के साथ मिस्र की जानिब रवां दवा होते हैं। हद निकाह तक बड़ी तादाद में सिपाही उनके साथ होते हैं। दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए कमांडर चातलियन से पूछता है कि आप कुछ आराम करना चाहेंगे? तो चातलियन कहता है नहीं, मैं जल्द अज जल्द कायरा पहुंचना चाहता हूँ। इसके बारे में सोचो, मैं हर उस मुसलमान को कत्ल कर सकूंगा जो मेरे सामने खड़ा होगा, और वो भी बादशाह की इजाजत के साथ। कमांडर कहता है लगता है आप बहुत अरसे से इस लम्हे का इंतजार कर रहे थे जनाब। तो चातलियन कहता है बिल्कुल, भूख और थकावट इंतजार कर सकती है, लेकिन यह खूनखार अफलियत जो मेरे अंदर है, मुझे यकीन नहीं कि ये मजीद इंतजार कर पाई। कायरा में काजी फाजिल चारा छुपाए आगे बढ़ रहे होते हैं, मगर आगे बढ़ते बढ़ते उनके सामने जोर से होता है। जोर उनसे कहता है काजी फाजिल खैर तो है, आप इतनी जल्दी में क्यों हैं? ये कहते साथ वो हंसने लग जाता है। फिर उनकी जानिब बढ़ते हुए कहता है वजीर हजरत आपके इंतजार में यहीं चलें। काजी फाजिल उसे गिराकर भाग पड़ते हैं और जोर सिपाहियों के साथ उनका ताकुब करता है। उधर हम देखते हैं कि दरिया नील के बहरी जहाज में सलाउद्दीन अय्यूबी खलील के साथ खाना लेकर बालिन के पास आते हैं। खाना देखकर बालिन कहता है मेरा ख्याल है कि मरते वक्त मेरा पेट भरा हुआ है, ये जानकर तुम्हारे ज़मीर को सुकून मिलेगा, मगर मैं तुम्हें वो नहीं दूंगा जो तुम चाहते हो। तुम खुल्लम खुला जंग शुरू कर रहे हो। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम लोगों ने जंग शुरू की है। बालिन कहता है फिर वही अल्फाज माजे में कुछ और अब मिस्र, तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे हमें इन जगहों पर रहने का कोई हक ही नहीं है। सलाउद्दीन अय्यूबी कहते हैं काश तुम लोगों का वाहिद मकसद मुकद्दस जगहों पर सुकून से रहना होता, मगर अफसोस के नहीं, तुम लोगों ने अमन के बहाने लोगों का कत्लेआम किया, और सबसे बुरा क्या किया, तुम लोगों ने खून को सोने और दौलत में बदल दिया, इसलिए तुम मिस्र का मुतालबा करते हो। कायरा में काजी फाजिल के सामने जो भी आता है वो उसे गिराते ही चले जाते हैं। जोर भी सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है। भागते हुए काजी फाजिल उनके सामने रुकावटें गिराते ही चले जाते हैं, मगर जोर और उसके सिपाही फिर भी नहीं रुकते। इधर बालिन कहता है मैंने कभी नहीं कहा कि कुछ की बादशाहत मुकम्मल तौर पर बेकसूर है, और ना कभी ऐसा कहूंगा। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नहीं है जो सिर्फ माल गनीमत के लिए लड़े? सलाउद्दीन भी कहते हैं यकीनन हम करते हैं, लेकिन हम किसी और चीज के बारे में बात कर रहे हैं। सलीबियों ने सदियों से लामतनाई लालच के साथ मश्रिक की सरजमीन पर हमला किया, ये एक कत्लेआम है। बालिन खड़े होकर कहता है ये वही है जो यीशु के रास्ते पर चलते हैं, और तुम कौन हो? किसके नाम पर हमें पाक सरजमीन से निकालने की कोशिश कर रहे हो? सलाउद्दीन भी कहते हैं एक दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपना सर पत्थर पर रखकर लेट गए। जब वो एक दिलकश ख्वाब देख रहे थे, अचानक शैतान ने उन्हें जगाकर पूछा ए ईसा, आप कहते रहते हैं कि आपको फानी दुनिया में चीजों की ख्वाहिश नहीं है, क्या ये पत्थर फानी दुनिया से ताल्लुक नहीं रखता? हजरत ईसा उठ खड़े हुए, उन्होंने वो पत्थर पकड़कर शैतान की तरफ फेंक दिया। उन्होंने कहा आप पत्थर और दुनिया दोनों को हासिल कर सकते हैं, हम मुसलमान सदियों से शैतान को संसार कर रहे हैं। तुमने वो पत्थर पकड़ा जब तुमने बरसों पहले एबलेन छोड़ा था, लेकिन तुम फेंकने की जसारत ना कर सके। इंशाल्लाह एक दिन तुमने ये हिम्मत होगी बालिन, अब अपना खाना खाओ। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन भी पलट जाते हैं। कायरा में काजी फाजिल मुसलसल भाग रहे होते हैं। जोर सिपाहियों के साथ उनके पीछे पीछे होता है। काफी देर भागने के बाद काजी फाजिल रुक जाते हैं। जोर भी सिपाहियों के साथ उन तक पहुंच जाता है और कहता है देखो तुम भाग नहीं सकते काजी फाजिल, क्या तुम नहीं समझते? तो काजी फाजिल कहते हैं फौजियों से कहो कि मुझे पकड़े। उधर मैला गुस्से में जमशेद से कहती है लानत तो जमशेद, सब कुछ बर्बाद हो गया। सलाउद्दीन जानता है कि मैं कौन हूँ, अगर वो ना जानता होता तो मुझे चारे के तौर पर इस्तेमाल क्यों करता? हमसे कहीं गलती हुई है जमशेद, लेकिन कहाँ? इसलिए मैं शमसा दुकान में दाखिल होती है तो मैला उसे पूछती है क्या उन्हें खुशबू पसंद नहीं आई? तो शमसा कहती है इसके बरक्स आपकी खुशबू बहुत असरंगेज थी, जब हमने उसे लगाया तो ये पूरे कायरा में फैल गई। उधर जोर के हुक्म पर सिपाही जैसे ही काजी फाजिल की जानिब बढ़ते हैं तो काजी फाजिल एक सिपाही की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं आप खालिद हैं, क्या आप नहीं हैं? मुझे वो दिन वाज़ेह तौर पर याद है जब आप महल के मुआवजे में शामिल हुए थे। आपके दाखिले के लिए दरकार कागजात मैंने खुद लिखे थे। फिर दूसरे सिपाही की जानिब इशारा करते हुए कहते हैं तुम मिकाइल हो, तुम्हारे बीमार बाप ने मुझसे मिन्नत की कि मैं तुम्हें बाहर की दीवारों से महल में मुकर्रर कर दूं। तुम्हें याद है वजीर ने कहा था नहीं, क्या मैं वो नहीं हूँ जिसने महल में मुकर्रर होने में तुम्हारी मदद की मिकाइल? और आप लोग क्या मुझे वाकई बताना होगा कि मैंने आपके लिए क्या किया? मैंने मिस्र की हिफाजत अपने हाथों से तुम लोगों को सौंपी, अपने तख्त और अपने मकार की हिफाजत करने वाला एक ऐसा वजीर जो मुस्लिमों के साथ ताउन करता है और अपने मुसलमान भाइयों को बेचने पर कभी शर्मिंदा नहीं होता। क्या तुम उसका अब भी हुक्म मानोगे? काजी फाजिल की बातें सुनते साथ ही सिपाही पीछे हट जाते हैं। ये देखकर जोर कहता है तुम इसकी बातें क्यों सुन रहे हो, गिरफ्तार करो इसे, ये गद्दार है। काजी फाजिल कहते हैं मैं गद्दार नहीं बल्कि काजी फाजिल हूँ, मैं अब मुड़कर खलीफा हज़रत के महल की तरफ चलता रहूंगा। अगर तुम्हें ज़मीर और हिम्मत है आओ और मुझे ले जाओ मिस्र के बेटो। ये कहते साथ ही काजी फाजिल पलट जाते हैं और सिपाही अपनी तलवारें म्यान में डाल लेते हैं। ये देखकर जोर गुस्से से कहता है मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा सिपाहियों, मैं तुम सबको एक एक करके अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कायरा में शमसा खुशबुएं देखते हुए मैला से कहती है मुझे खुशबू इतनी पसंद आई कि मैं यहाँ एक और बोतल खरीदने आई हूँ। ये सुनते साथ ही मैला खुशबू लेने के लिए आगे बढ़ती है, मगर उसे वो ख्याल आता है जब उसने पहले खुशबू शमसा को देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया था। इस ख्याल के बाद वो शमसा को खुशबू दे देती है और शमसा की दुकान से चले जाने के बाद जमशेद से कहती है मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगी लड़की, जब सलाउद्दीन मरेगा, जब उसकी लाश की बदबू पूरे कायरा में फैल जाएगी, उस दिन तुम और मैं दोबारा मिलेंगे शमसा। जमशेद में इस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहती हूँ, जहाँ वो रहती है, वो क्या खाती और क्या पीती है। साथ के वक्त बहरी जहाज में सलाउद्दीन भी से कहते हैं मेरे अमीर वो भी हमें ढूंढ रहे हैं। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं उन्हें जमीन में देखने दो, क्या कोई जहाजों की तलाशी लेने आया है? तो एसिस कहते हैं बंदरगाह पर सिर्फ हमारा बहरी जहाज इंतजार नहीं कर रहा, आस पास और भी बहुत से तिजारती जहाज हैं, हमें जल्द अज जल्द निकलना होगा। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं हमें उसके लिए मालूमात चाहिए। बालिन भी उनकी बातें सुन रहा होता है। एसिस पूछते हैं मेरे अमीर के उसने कुछ बताया? जवाबन सलाउद्दीन भी कहते हैं अभी तक नहीं। सुबह के वक्त शमसा काजी फाजिल के बताए हुए ठिकाने की जानिब निकल पड़ती है। लैला और गुलजारा भी उसके साथ होती है। जमशेद छुपकर ये सारा मंजर देख रहा होता है। दूसरी तरफ चातलियन सिपाहियों के साथ कायरा में दाखिल होता है। उसे देखकर एक ताजिर कहता है शहवार ने भी दरगाम की तरह इन काफिरों को हमारी जमीन पर कदम रखने की इजाजत दे दी है, अल्लाह हम पे रहम फरमाए। आगे बढ़ते हुए चातलियन कहता है कायरा से मुसलमानों की बदबू आ रही है और मैं ये बू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। आगे बढ़ते हुए शमसों ने देखकर छुप जाती है और परेशान होते हुए कहती है कायरा में इतने ज्यादा टेम्पलर्स क्या कर रहे हैं? बहरी जहाज में सलाउद्दीन भी के पास आता है और उनसे कहता है मेरे अमीर मैंने कप्तान से बात की है, आपके हुक्म के मुताबिक उसने जहाज की रवानगी के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। इसलिए इदरीस वहाँ आता है और कहता है मेरे अमीर हमें शाम से खबर मिली है। खत पढ़ने के बाद सलाउद्दीन भी कहते हैं फौज रवाना हो गई है, अमीर शेरको और यारोकी बाबेन के करीब इकट्ठे होंगे, कायरा जल्दी जंगी सिपाहियों से भर जाएगा। यह सुनकर उनके साथी बहुत खुश होते हैं।
हैं। कायरा में शहवार कहता है, काजी फाजल ने खलीफा के महल में पनाह ली। हाँ, वो सोचता है कि मैं उसे वहाँ से नहीं ले जा सकता, बस मेरा इंतजार करो, मैं जानता हूँ कि क्या करना है। क्या बादशाह माले की तरफ से अभी तक कोई खबर नहीं आई? कुछ ही देर में चातलियोन गुस्से में दरवाजा खोलते हुए अंदर दाखिल होता है और पूछता है, शहवार क्या ये तुम हो? तो शहवार कहता है, हाँ, और तुम? तो चातलियोन कहता है, अजीम चातलियोन, यहाँ का रखवाला। फिर उसकी टोपी से पंख उतारते हुए कहता है, अच्छा तो अब मुझे ये बताओ, तुमने आखिरी बार अमीर सलाउद्दीन को कहाँ देखा था? चातलियोन की इस कदर बेतकल्लुफी पर कोई भी खुश दिखाई नहीं देता। बहरी जहाज में खलील बालेन के पास आता है तो उसने खाना नहीं खाया होता। ये देखकर खलील कहता है, तुमने इसे बिल्कुल नहीं खाया, क्या तुम्हें भूख नहीं है? उसकी तरफ से जवाब न मिलने पर खलील खाना लेकर चला जाता है। खलील के जाते साथ ही सलाउद्दीन भी वहाँ आते हैं। बालेन उनसे कहता है, तुम्हें अभी तक कोई रास्ता नहीं मिल सका है ना, तुम यहाँ फंस गए हो, मेरे सिपाहियों को क्या होगा? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुमने उनके साथ क्या किया। तो सलाउद्दीन भी कहते हैं, तुम्हारे सिपाही मेरे पास हैं, अगर तुम उन्हें बताते जो मैंने कहा तो उनका अंजाम बुरा होगा। बालेन कहता है, अगर उन्हें जरा सा भी नुकसान पहुंचा। सलाउद्दीन भी इसकी बात करते हुए कहते हैं, उन्हें तुम बचा सकते हो। बालेन कहता है, बादशाह मालिक अपने लोगों की हिफाजत करेगा, वो मुझे और अपने सिपाहियों को अकेला नहीं छोड़ेगा। सलाउद्दीन भी कहते हैं, मुझे लगा कि तुम एक ज़हीन आदमी हो, तुम परेशान होगे। कुछ में आगे बढ़ते हुए सबीला लॉर्ड जोम से कहती है, तुम्हारे साथ क्या मसला है? सफर के लिए पुरजोश नहीं हो? तो लॉर्ड जोम कहता है, मैं पुरजोश नहीं हो सकता क्योंकि मेरा साथी लड़गाए है। सबीला कहती है, हमारे बारे में सोचो और राहत महसूस करो, जल्दी से जाओ और वापस आओ। लॉर्ड जोम से प्यार करते हुए कहता है, मैं जब वापस आऊंगा तो सब कुछ मुख्तलिफ होगा। लड़गाए की जानी बड़ी होता है कि विलियम उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, मियां बीवी को अलविदा कहने दो। तो लड़गाए कहता है, जोम वाइद नहीं है जो जा रहा है, हम भी तो जा रहे हैं। विलियम पूछता है, तुमने उस लॉर्ड जोम को बाहर निकलवाया जिसको तुमने जिंदान में भेजने की बहुत कोशिश की थी, आखिर क्यों? जवाब में लड़गाए कहता है, कुछ के मुस्तकबिल के बारे में फिक्र करना सिर्फ आपका काम नहीं है, विलियम सब कुछ बादशाही के लिए है। ये कहते साथ ही लड़गाए आगे बढ़ जाता है और विलियम कहता है, बादशाही के लिए या फिर बादशाह बनना? आह लड़गाए। इमाम लेक भी बुलंदी पर से सारा मंजर देख रहा होता है, इसलिए स्पाई से खत देते हुए कहता है, हमें जासूस की तरफ से खबर मिली है। खबर पढ़ने के बाद इमाम लेक गुस्से से कहता है, नूरुद्दीन तुमने जो शाम से फौज भेजी है उसे देख नहीं पाओगे। कायरा में चातलियोन उस गोदाम में होता है जहाँ से सलाउद्दीन ईबी ने बालेन को अगवा किया था। उसके सिपाही एक शख्स को लेकर आते हैं और कमांडर कहता है, गोदाम में मौजूद हर एक चीज का जिम्मेदार ये शख्स है। वो शख्स कहता है, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम, रुक जाओ, तुमने पहले ही अफरा तफरी फैला रखी है, बस कर दो, तुम और क्या चाहते हो? तो चातलियोन से कहता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम बस इतना बताओ कि तुम क्या जानते हो। अमीर सलाउद्दीन सुलेबी सिपाही और गंदम कहाँ लेकर जा रहा है ये बताओ। मगर वो शख्स फिर से कहता है, मैंने कहा कि मुझे कुछ नहीं मालूम। वजीर के सिपाहियों ने अच्छी तरह यहाँ की तलाशी ली है, उन्हें यहाँ से कुछ नहीं मिला। ये सुनते साथ ही चातलियोन से दबोच लेता है। तो आने वाला जौहर कहता है, यहाँ वक्त जाया करने की जरूरत नहीं है, बंदरगाह पर मौजूद मेरे सिपाहियों ने खबर भेजी है, मेरा अंदाजा है कि हमें इस बारे में इशारा मिल गया है कि वो कहाँ है। ये सुनकर चातलियोन बहुत खुश होता है और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ जाता है। उधर महिला जमशेद से कहती है, तो इसलिए कायरा में उसका अपना घर भी नहीं है। जवाब में जमशेद कहता है, मैंने यही सुना है, लेकिन वो कायरा से वाकई प्यार करती है, वो बहुत मासूम है। महिला कहती है, मासूम? तो जमशेद कहता है, मैं तो वो बता रहा हूँ जो लोग कहते हैं। मगर महिला कहती है, वो लड़की हमें सलाउद्दीन के पास लेकर जाएगी, बालेन की तरफ से भी कोई खबर नहीं है, वो सोचता होगा कि मैंने उसे जानबूझकर फंसाया। जमशेद कहता है, यहाँ बहुत अफरा तफरी है, एक तरफ जंगी दूसरी तरफ सुलेबी, मुझे लगता है कि हमें आपको महफूज तरीके से कैरक ले जाने का कोई रास्ता तलाश करना होगा। मगर महिला कहती है, मुझे महफूज रहने की कोई परवाह नहीं है, मैं उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक कि मेरे हाथ सलाउद्दीन के खून से रंगे ना जाएं। उधर शेर को मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं और यारुकी से पूछते हैं, क्या कर्तगन के बारे में कोई खबर है? तो यारुकी कहता है, जब वो अपने भांजे की पैदाइश के बारे में सुनेगा तो आएगा। जैसा कि सब जानते हैं कि मलिक साले न सिर्फ जंगियों के लिए बल्कि बोरों के लिए भी कीमती है। मैंने शाम से निकलने से पहले एक कासिद भेजा था, लेकिन पता नहीं कि वो कहाँ है। उधर हम देखते हैं कि सहरा में कर्तगन लेटा होता है और उसकी आवाज गूंजती है, दुनिया एक समुंदर थी, ना आसमान था ना जमीन, सब कुछ पानी में था। एल्गिन उड़ता रहा, एल्गिन उतरने के लिए जगह तलाश कर रहा था, किसी तरह उसका दिल जख्म से भर गया। फिर गैब से आने वाली आवाज ने उसे शिफा बख्शी, वक्त आ चुका था, उसने कहा हु और हो गया। ये कहते साथ ही कर्तगन अपनी आंखें खोलता है और खड़े होकर इधर उधर देखने लग जाता है। दूर दूर तक उसके पास कोई नहीं होता, उसे सिर्फ एक उड़ता हुआ परिंदा दिखाई देता है, जिसे देखकर उस लम्हे को याद करता है जब जंगल में बुजुर्ग ने उसे कहा था, अपनी अकल का इस्तेमाल करो कारा। दरियाई नील के किनारे सुलेबी सिपाही एक शख्स को दबोच कर चातलियोन के सामने लाते हैं। चातलियोन से कहता है, क्या तुम ही हो जो बंदरगाह के जिम्मेदार है? वो शख्स कहता है, जी हाँ। चातलियोन कहता है, क्या तुमने हाल ही में कुछ अजीब देखा है? जैसे तुम्हें मालूम है कि एक जहाज या कश्ती अचानक रवाना हुई है, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा? तो वो शख्स कहता है, नहीं नहीं। यह सुनकर चातलियोन को बहुत गुस्सा आता है और उसके हुक्म पर सिपाही उस शख्स को लटा देते हैं। चातलियोन एक बड़े हथौड़े से उसके बाजू पर जोरदार वार करता है, जिससे उसकी बाजू टूट जाती है। ये देखते हुए वहाँ मौजूद लोग डर के भाग जाते हैं। चातलियोन अगला वार उसके दूसरे बाजू पर करता है। ये मंजर देखकर जोर भी हैरान रह जाता है। दोनों बाजू तोड़वाने के बावजूद वो शख्स कहता है, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं मालूम। तीसरा वार उसके सर पर होने ही लगता है कि वो शख्स एकदम से कहता है, एक माहीगीर, एक माहीगीर। वो समुद्र में कश्तियों को सामान फराहम करता है, वो कुछ जानता होगा, मैं कुछ नहीं जानता। चातलियोन पूछता है, उसका नाम क्या है? तो वो शख्स कहता है, ईमान, उसकी कश्ती वहाँ है। वो शख्स इल्तिजा तो करता है मगर जालिम चातलियोन उसका सर फोड़ डालता है। सहरा में शेरको यारुकी के साथ मुसलसल आगे बढ़ रहे होते हैं। जहाज में खलील फिर से खाना लेकर बालेन के पास आता है तो वहाँ बैठे सलाउद्दीन भी बालेन से कहते हैं, जिद ना करो, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें ये जरूर खाना चाहिए। मगर बालेन कहता है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं जब तक ये ना देख लूं कि मेरे सिपाही ठीक है और भूखे नहीं है। सलाउद्दीन भी कहते हैं, तुम्हारे सिपाही पहले ही खाना खा चुके हैं, उन्होंने ना ये सोचा और ना पूछा कि तुमने खाना खाया या। चातलियोन सिपाही के साथ माहीगीर ईमान के पास आता है और उससे पूछता है, क्या तुम माहीगीर ईमान हो? ईमान कहता है, कौन पूछ रहा है? जवाब में चातलियोन कहता है, कोई जो मछली पकड़ना पसंद करता है। ईमान कहता है, आप सही आदमी के पास आए हैं, मेरी कश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। मगर चातलियोन कहता है, मुझे कश्ती की जरूरत नहीं, मुझे जहाज चाहिए। ईमान कहता है, मैं फिर आपकी मदद नहीं कर सकता, मैं जहाज का काम नहीं करता। चातलियोन कहता है, तुम नहीं करते मगर कोई और करता है, तुम जिस जहाज को सामान पहुंचाते हो उस पर कौन है? ईमान कहता है, मैं 40 जहाजों को सामान पहुंचाता हूँ, आप किसके बारे में पूछ रहे हैं? चातलियोन कहता है, अमीर सलाउद्दीन के बारे में। ईमान परेशान होते हुए कहता है, मैं किसी अमीर को नहीं जानता, अगर आपको कश्ती की जरूरत है तो बताएं वरना आप चले जाएं। चातलियोन गुस्से में उसे देखने लग जाता है। शाम में सुल्तान मलका से कहते हैं, तुम 2 दिन से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। मलका के जवाब ना देने पर सुल्तान उनके पास आकर कहते हैं, अगर हमारे मलिक की पैदाइश की खबर मेरे लिए खुशखबरी है तो तुम्हारे लिए भी खुशखबरी है। मलका कहती है, मेरे सुल्तान
में। तो सुल्तान कहते हैं अब अगर तुम अपने नफ्स के खिलाफ इस जंग में फतह याब हुई तो फिर कोई ऐसा दुश्मन नहीं होगा जो तुम्हें शिकस्त दे सके। नाज़रीन, इसके बाद हमें कब्रस दिखाया जाता है। मुआहदे के बाद लाड़काई गंदम लेने में कामयाब हो जाता है। वहाँ के सरबराह लार्जियम से कहता है ये एक अच्छा सौदा है, आपके साथ इजारत करने एजाज की बात है लार्जियम। फिर दूसरा कहता है हमने यही बोले कि माजी में अपने कब्रस के लिए क्या कुछ किया, हम आपके मशकूर हैं। लार्जियम उनका शुक्रिया अदा करता है और उसके बाद वो जैसे ही जाने लगते हैं मुसलमानों के बेस में कुछ लोग वहाँ आते हैं। वो कहते हैं तुम ये गंदम लेकर नहीं जा सकते। लार्जियम कहता है तुम कौन हो और क्या चाहते हो। जवाब में उनमें से एक कहता है तुम जो गंदम लेकर जा रहे हो उसमें से आधे से ज्यादा यानी कि हम मुसलमानों से खरीदी जाती है। सुल्तान और उद्दीन के हाथों गंदम से महरूम रहने वालों को हम अपने हाथ से नहीं खिलाएंगे, गंदम कुछ नहीं पहुंचेगी। यह सुनकर लाड़काई सिपाही से कहता है शहजादे को ले जाओ और इसकी हिफाजत करो। फिर हमलावरों से कहता है गंदम कुछ पहुंच जाएगी और तुम्हारे कटे हुए सर सुल्तान और उद्दीन तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है। लार्जियम भी हमलावरों को काटना शुरू कर देता है। उधर हम देखते हैं कि चातलियन जौहर और सिपाहियों के साथ कश्ती पर सवार होता है और कहता है अपनी जान में फंस जाना, ये हैरत अंगेज है। ये कहते साथ ही वो कश्ती पर लेट कर रवाना हो जाता है। कब्रस में लाड़काई और लार्जियम हमलावरों को काट रहे होते हैं। शहजादा बाल्डोन भी ये सारा मंजर देख रहा होता है। लड़ते हुए लाड़काई लार्जियम की जानिब देखने लग जाता है जो किसी भी दुश्मन को पास भटकने तक नहीं देता, मगर अगले ही लम्हे गद्दारी की बेंट चढ़ जाता है और हमलावर की तलवार उसकी पीठ से आर पार हो जाती है। ये देखकर बाल्डोन रोते हुए कहता है लार्जियम, इन्होंने लार्जियम को मार डाला। लाड़काई आगे बढ़कर उस हमलावर को कत्ल कर देता है ताकि कोई सबूत बाकी ना रहे। लार्जियम के जमीन पर गिरते साथ ही हमलावरों को सरबराह कहता है हम पीछे हटेंगे, चलो। ये कहते सुनते साथ ही वो सब भाग जाते हैं, मगर लाड़काई हिलता तक नहीं है। वो लार्जियम के पास आता है तो लार्जियम कहता है तुम। तो लाड़काई उस लम्हे को याद करता है जब उस हमलावर सरबराह ने इससे कहा था सब कुछ तैयार है, आपके हुक्म के मुताबिक हमने मुसलमानों को उकसाना शुरू कर दिया है, हम मुसलमानों का बेस बदल कर उनका मुआवजा करेंगे और मैं ये सारी बातें करूंगा। लाड़काई ने कहा था शहजादे पर तवज्जो देना, मैं नहीं चाहता उसे कोई नुकसान पहुंचे, कोशिश करना कोई बड़ा नुकसान ना हो गिजल, बस लार्जियम मारा जाए। तो गिजल ने कहा था आप बेफिक्र रहें। इस ख्याल के बाद लाड़काई लार्जियम से कहता है मैं सबेला और तुम्हारे बेटे का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा। लार्जियम उठने की कोशिश करते हुए कहता है तुम, मगर अगले पल उसकी सांसें टूट जाती हैं। ये देखकर बाल्डोन उसकी जानिब भाग पड़ता है और रोते हुए लार्जियम लार्जियम पुकारता है। उधर हम देखते हैं कि चातलियन सिपाहियों के साथ एक बहरी जहाज में चढ़ता है और तलवार बेनियाम करते हुए कहता है बेड़े को घेर लो। ये कहते साथ वो एक कमरे में दाखिल होता है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। जौहर भी दूसरे कमरे में जाता है। इधर चातलियन कहता है वो कहाँ है। उधर सलाउद्दीन भी बालेन को लेकर कमरे में दाखिल होते हैं। सराय वाला भी उनके साथ होता है और कहता है मेरे अमीर अब ये जगह महफूज है। सलाउद्दीन भी इस लम्हे को याद करते हैं जब उर्फा ने उनसे आकर कहा था मेरे अमीर सराय वाले ने पैगाम भेजा है, चातलियन का आया है, इमाम लेग ने उसे सुराग लगाने के लिए भेजा है, उन्होंने माहीगीर को पकड़ लिया जो हमारे लिए सामान ला रहा था। तो सलाउद्दीन भी ने कहा था इससे पहले कि वो हमें ढूंढे हमें फौरी तौर पर जहाज को खाली करना चाहिए। इस ख्याल के बाद सलाउद्दीन भी कहते हैं सराय वाले शुक्रिया, खबर सही वक्त पर पहुंची। बालेन कहता है सलाउद्दीन तुम बेकार में भाग रहे हो, जब वो इतने करीब पहुंच चुके हैं तो उनसे बचना नामुमकिन है। इसके अलावा वो शनाख्ती इलामत मिस्री परिंदा थी, शहवार यही चाहता था। सलाउद्दीन भी गुस्से से कहते हैं मैं तुमसे इसका हिसाब लूंगा, कायदा से इतना दूर आने के बाद तुम ये मालूमात दे रहे हो। उधर चातलियन चिल्लाते हुए कमरे से बाहर आता है और कहता है वो कहाँ है कहाँ है। जौहर और सिपाही भी आकर कहते हैं जहाज खाली है, या तो मालूमात गलत थी या वो फरार हो गए हैं। चातलियन गुस्से से कहता है इकट्ठे हो जो हम जा रहे हैं। कायदा में शमसा काजी फाजल के बताए हुए घर में दाखिल होती है। लैला को वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वो आते साथ ही पूछती है हम घर कब जाएंगे। तो शमसा उससे कहती है हमें कुछ देर यही रहना चाहिए लैला, मुझे बहुत भूख लगी है, और खाना बनाते हैं। भोरों के बेले में करतगन अपने खेमे में दाखिल होता है। उसके पीछे पीछे अलबेज भी आता है और खुश होते हुए कहता है शुक्र है कि आप वापस आ गए हुजूर, हमने आपको हर जगह तलाश किया, हमें आपका कुछ सुराग नहीं मिला, क्या हम आपके मुबारक मुंह से एक लफ्ज भी नहीं सुनेंगे। मैं बहुत हिचकिचा रहा था कि ये कहूँ या ना कहूँ, लेकिन शाम से खबर है। बिलाखिर करतगन उसके सामने खामोशी तोड़ देता है और उसे कहता है बोलो, मजीद इंतजार ना करवाओ। ये सुनकर अलबेज खुश होते हुए कहता है मैं इस खूबसूरत आवाज पर कुर्बान हो जाऊं, उस वक्त तक बोले जब तक कि जमीन खुशहाल ना हो जाए, और उस वक्त तक हंसे जब तक कि दुनिया मुझ पर ना हंसने लगे। करतगन कहता है बोलो क्या हुआ है। तो अलबेज कहता है सुल्तान और उद्दीन चाहते हैं कि हम मिस्र की मुहिम में शामिल हों, ये एक शदीद जंग होगी और एक बड़ी फौज जमा हो गई है। इसके अलावा मेरे पास ये कुछ चीजें हैं। ये बोतलें देने वाले कसर पूरा खाकिस्त्री था, सिर्फ आंखों की स्याही छोड़कर वो एक ऐसा आदमी था जिसकी खुसूसियात मैंने पहले कभी नहीं देखी थी, हमारे बाप दादा की तरह लगता था। उसने मुझसे आपको ये देने का कहा। करतगन एक बोतल उठाकर देखता है तो अलबेज मजीद कहता है एक लंबा रास्ता, एक तपता सहरा, जब आपकी ज़बानें खुश्क हो जाएं और आपके होंठ फट जाएं तो इन बोतलों में शिफा है। उसने कहा कि आपको जिंदा रखने के लिए एक ही कतरा काफी है। करतगन पूछता है उसने और क्या कहा। अलबेज कहता है उसने कहा करतगन को मेरा सलाम कहना और कहना कि वो उन लोगों की दवा बने जो बहुत तकलीफ में है। कायरा में महिला आगे बढ़ रही होती है। इधर शमसा घर में खाना बना रही होती है, इसलिए मैं उन्हें दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है। शमसा आगे बढ़कर दरवाजे के पीछे खड़ी हो जाती है। लैला एक दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है और दरवाजा न खुलने पर खंजर के जरिए उसे खोलने की कोशिश करती है। अंदर शमसा बहुत परेशान दिखाई देती है। कुछ देर के बाद मैला दरवाजा खोलती है तो अंदर कोई नहीं होता, तो गुस्से से कहती है ये आखिर किस जहन्नुम में गए हैं। ये कहते साथ वो आगे बढ़ जाती है। उधर शमसा पूछती है कौन है। तो बाहर से आवाज आती है मैं ताहिर हूँ, आपने रोटी मांगी थी तो मैं ले आया हूँ। ये सुनकर शमसा पुरस्कून होते हुए दरवाजा खोल देती है। ताहिर उसे रोटी देता है। शमसा उसे कीमत अदा करते हुए कहती है आपने हमें देखा या हमारे बारे में कुछ सुना नहीं है, ठीक है ताहिर। तो ताहिर कहता है बिल्कुल बहन। शमसा कहती है शुक्रिया, हमें हर रोज रोटी दे जाना। ये सुनते साथ ही ताहिर चला जाता है। उधर खलीफा हजरत के कमरे में लतीफ एक शख्स को दुआ देते हुए कहता है उन्हें ये पीना है और दूसरा मरहम आपको उनकी कमर पे लगाना होगा। जवाब में वो शख्स कहता है ठीक है अच्छा हुआ तुम आ गए, तुम्हारा शुक्रिया, खलीफा हजरत की सेहत में बेहतरी आई है, चाहे थोड़ी सी ही सही। तो लतीफ कहता है ये मेरा फर्ज है। इसलिए में काजी फाजल वहाँ आते हैं। उनके आने पर लतीफ पूछता है क्या हुआ। तो काजी फाजल पूछते हैं खलीफा हजरत कैसे हैं। जवाब में लतीफ कहता है पहले से बहुत बेहतर है। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है खलीफा हजरत वजीर शहवार आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो अंदर से खलीफा की आवाज आती है क्या तुमने उसे नहीं बताया कि मैं दस्तयाब नहीं हूँ और किसी से मिलना नहीं चाहता। मगर शहवार सिपाही के पीछे पीछे अंदर दाखिल होते हुए कहता है दर हकीकत इन्होंने मुझे बताया था खलीफा हजरत, बिल्कुल बताया था, लेकिन मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। ये कहते साथ ही वो काजी फाजल को देखने लग जाता है। उधर बालिन कहता है देखो मैं किस हाल में हूँ, मैं फंस गया हूँ। इसलिए में सलाउद्दीन भी वहाँ आते हैं और कहते हैं तुम इस वक्त जिस हालत में हो इसकी वजह तुम खुद हो और इमाम लेग भी। तो बालिन कहता है इमाम लेग ने चातलियन को यहाँ भेजकर तुम्हें जवाब दिया है, हम तुम्हारे साथ
साथ मुज़ाकरात की मेज पर नहीं बैठेंगे और अब तुम किसी भी जहाज के मालिक नहीं रहोगे। जवाबन सलाउद्दीन ये भी कहते हैं, समुंदर, जमीन और आसमान यकीनन हमारे लिए रास्ता खोलेंगे। एक बार जब हम दोनों दरवाजों तक पहुंच जाएंगे तो हमें इस बात की परवाह नहीं होगी कि मारलेक क्या करेगा। शाम में स्फहानी सुल्तान के पास आकर कहते हैं, मेरा सुल्तान का टिकन आ गया है और आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है। सुल्तान के हामी सर लाने पर स्फहानी चले जाए में शहवार काजी फजल की तरफ इशारा करते हुए खलीफा से कहता है, वो शख्स जिसे आप अपने पास बना दिए हुए हैं, इसने जंगियों की मदद की और हिमायत करके मिस्र से गद्दारी की। मैं दरख्वास्त करता हूँ कि इसे हमारे हवाले कर दिया जाए। मगर खलीफा की आवाज आती है, मेरी बीमारी मुझे ना रोकती तो मैं कायरा की सड़कों को सलीबियों के जूतों की बदबू से कभी आलूदा ना होने देता शहवार। शहवार कहता है, अगर ये मामला है तो आपको अपने सर के करीब खड़े इस गद्दार की बदबू क्यों नहीं आती। खलीफा की आवाज आती है, मैं काजी फाजल को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। तो शहवार कहता है, आपकी कमजोरी जिसे आप पर्दे के पीछे छुपाते हैं सूरज की तरह आया हो जाएगी। आप मजबूत होने का दिखावा करते हैं लेकिन मैं आपको जानता हूँ और अब आप मेरी मुखालफत काजी फाजल के लिए करेंगे। हाँ तो ठीक है फिर। खलीफा की आवाज आती है, लालच ने तुम्हारी जुबान से शायदगी का दामन छीन लिया है। जान लो कि अगर तुमने दोबारा ये बात दोहराई तो मैं बीमारी के बिस्तर से उठकर तुम पर अपनी तलवार से वार करूंगा। यह सुनकर शहवार काजी फाजल के पास आता है और कहता है, जिस बुनियाद पर तुम इंसार कर रहे हो वो एक दिन गिर जाएगी। जवाब में काजी फाजल कहते हैं, अगर कुछ गिरेगा तो वो तख्त है जिस पर तुम बैठे हो वजीर शहवार। यह सुनकर शहवार गुस्से में मुट्ठी बंद कर लेता है और मजबूरन चला जाता है। उधर करतगन सुल्तान के पास आता है। सुल्तान आगे बढ़ते हुए कहते हैं, हम आपकी हालत से गाफिल नहीं है करतगन। करतगन कहता है, सुल्तान ये कैसी हालत है जिसमें मैं हूँ, मुझे बताएं ताकि मैं भी जान जाऊँ। खुदा उस बच्चे को सलामत रखे जो मेरी बहन की बदौलत आपके घर आया है और उसका नाम रास्तबाजों के साथ लिखा जाए। तो सुल्तान कहते हैं, आमीन। क्या वजह है कि आप हमें मुबारकबाद देने के लिए नहीं आए। जवाबन करतगन कहता है, सुल्तान और दिन मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूँ और आपको यह भी बताने आया हूँ कि मैं मिस्र जाने वाली फौज में शामिल नहीं होना चाहता। सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, क्यों, क्या सबब है कि तुम मेरे हुक्म पर अमल नहीं कर रही। तो करतगन कहता है, मैं जंग में हूँ, मैं अभी अंदरूनी तौर पर अपने साथ जंग कर रहा हूँ। जबकि मैं अपने आप से जंग कर रहा हूँ तो मेरे पास बाहर के दुश्मनों से लड़ने का वक्त नहीं है। ये वाज़ेह है कि बहन खातून और शहजादे यानी मेरे भांजे को यहाँ नहीं लाएंगे। मैं खुद उन्हें देखने जाऊंगा, मैं आपको ये बताने आया हूँ। ये कहते साथ वो जाने लगता है तो सुल्तान उसे रोकते हुए कहते हैं, वो तुम्हें रवानगी के वक्त से आगाह करेंगे। जिन मुसाफिरों के साथ साझा खून और साझी दुआ है उस सफर की मंजिल मिस्र है। मैं तुम्हारी जीत की खबर सुनने का इंतजार करूंगा, पहले अपने आप से जंग में और फिर अपने दुश्मनों से जंग में। और अगर तुम दोनों लड़ाइयों से बच गए तो फिर तुम जहाँ भी होगे मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा और उसके बाद अगर हो सके तो मेरी सजा से बचने के लिए भागना, अगर भाग पाओ तो। ये सुनते साथ ही करतगन चला जाता है। कायरा में मैला बेचैनी के आलम में टहल रही होती है, इसलिए मैं जमशेद वहाँ आता है तो गुस्से में उससे पूछती है, क्या तुम वक्त जाया करने की कोशिश कर रही हो जमशेद। मैं जिस घर में गई वहाँ कोई नहीं था। जमशेद कहता है, मैं भी इसके लिए आया हूँ। वो वहाँ से तो चले गए हैं लेकिन मैं जानता हूँ कि कहाँ गए हैं। वो घर बदलने के लिए निकले हैं। उधर चातियोन गुस्से में शहवार से कहता है, मैं सलाउद्दीन की सांस के करीब पहुंच गया था, सांस तक पहुंच गया था। ये कहते साथ ही वो बैठ जाता है तो शहवार कहता है, सलाउद्दीन होशियार है, वो आपसे ज्यादा मोहतात रहेगा। चातियोन कहता है, जब मैं जिंदान में था तो मैंने एक चूहे से दोस्ती की। वो पहले तो बहुत डरता था, यहाँ तक कि अपने सर को सुराख से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं करता था। फिर एक दिन मैंने उसके सुराख के सामने रोटी का एक टुकड़ा रख दिया। उसने काफी देर मुजामत की, वो मजीद मुजामत ना कर सका, इसलिए वो बिल से बाहर निकला और रोटी का टुकड़ा ले लिया। फिर वो मेरी गिरफ्त में आ गया। मेरा दोस्त, इस तरह हमें एक ऐसे चारे की जरूरत है जो सलाउद्दीन को उसके बिल से निकाले। इसलिए मैं मैला अपने असली रूप में वहाँ आती है और कहती है, मुझे बखूबी मालूम है कि सलाउद्दीन को कौन सा चारा वहाँ से निकालेगा। उसे इस तरह से देखकर सब चौंक जाते हैं। उधर ऐसे सलाउद्दीन भी से कहते हैं, अमीर कायरा का चारों तरफ से मुआवजा कर लिया गया है। शहवार के स्पाई, चातियोन और टेम्पलर्स एक साथ मुतहिद हो गए हैं। उन्होंने चारों तरफ से रास्ते बंद कर दिए हैं। फिर उर्फा कहता है, हालात ऐसे हैं कि हम सब बाहर निकलेंगे तो पकड़े जाएंगे। सलाउद्दीन भी कहते हैं, उर्फा इस बार नहीं, हमारा रब यकीनन हमें निकलने का रास्ता दिखाएगा। उनकी बातें सुनते हुए बालिन बिल्कुल खामोश रहता है। कायदा में शहवार मैला से पूछता है, हुमैरा खातून ये कैसी सूरत हाल है। तो मैला कहती है, वजीर हजरत मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाजत दें, मैं कैरक के काउंट्स मैला हूँ। ये सुनते साथ ही चातियोन उस समय को याद करता है जब लड़गाई ने उसे मैला से शादी की पेशकश की थी। इस ख्याल के साथ ही चातियोन एकदम से खड़ा हो जाता है। जोर पूछता है, अच्छा खुशबू की ताजिर हुमैरा खातून कहाँ चलेगी। तो मैला कहती है, हमारा दुश्मन एक है, हम सब सलाउद्दीन को चाहते हैं। हुमैरा खातून सलाउद्दीन को मारने के लिए उस लिबास से ज्यादा कुछ नहीं थी जो मैंने पहनी हुई है, लेकिन मुझे उस लिबास की जरूरत नहीं है। चातियोन से कहता है, काउंट्स मैला मुझे अपना तारुफ करवाने की इजाजत दें। ये कहते साथ ही उसके हाथ का बोसा लेता है और मजीद कहता है, चातियोन आपकी खूबसूरती की शोहरत सुनी है, मुझे लगा कि वो सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आपको देखकर लगता है कि उन्होंने कम ही बयान किया, क्योंकि हमारा दुश्मन एक है तो अब से हम दोस्त हैं। मैला कहती है, सलाउद्दीन जहाँ छुपा है उसे वहाँ से निकालने के लिए सिर्फ एक शख्स है और वो है शमसा। चातियोन पूछता है, फिर मुझे ये शमसा कहाँ मिलेगी। तो मैला कहती है, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में मेरी एक शर्त है, जब आप सलाउद्दीन को पकड़ेंगे उसे मारे बगैर मेरे पास लाएंगे, मैं उसे मारूंगी। उधर हम देखते हैं कि लाड़गाई गंदम लेकर कुछ पहुंच जाता है। गंदम देखकर लोग और सिपाही बहुत खुश होते हैं। वो सब लाड़गाई जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। लाड़गाई इस मंजर को देखकर बहुत खुश होता है। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं सहरा में करतगन अलबेज और सिपाहियों के साथ आगे बढ़ रहा होता है। अलबेज उससे पूछता है, हुजूर हम कहाँ जाएंगे, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया। क्या पापा खातून की तरफ यानी कि हलब जा रहे हैं या जंग में कायरा की तरफ। हमें आगे जाने के लिए रास्ते का तयन करना है हुजूर, आप जो भी हुक्म दें मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे आदमी एक तवील अरसे से जंग में नहीं लड़े। क्या मैदान मर्द की लड़ाई और मर्द मैदान की लड़ाई के लिए नहीं तरसता। मैं तो कहता हूँ कि मिस्र चलते हैं और जैसा कि आप जानते हैं गनीमत होगी हुजूर, उस जंग में बहुत ज्यादा माल गनीमत होगा। क्या वो हमारे बगैर उसे बांटेंगे। करतगन रुकते हुए कहता है, अलबेज। तो अलबेज कहता है, हुजूर जब आप मेरा नाम लेते हैं तो ये बहुत खूबसूरत हो जाता है, आप हुक्म करें। करतगन पूछता है, अलबेज में जिंदा हूँ या मुर्दा। तो अलबेज कहता है, मैंने आपको कई बार जिंदा होते देखा है हुजूर, लेकिन मैंने आपको कभी मरते नहीं देखा। तो करतगन कहता है, ये बताने वाले ने तुमको और क्या बताया। अलबेज कहता है, लफ्ज बलफ्ज उसने जो कहा मैंने अपने ज़हन में नक्श कर लिया और आपको बता दिया, मगर हुजूर आने वाला कौन है। तो करतगन खुश होते हुए कहता है, वो मेरी आंख का तारा है, मेरी आंखों का तारा। ये कहते सुनते साथ वो फिर से आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। उधर शमसा, लैला और गुलजारा के साथ मौजूद होती है। इसलिए में दस्तक होती है तो शमसा कहती है, रोटी आ गई। ये कहते साथ वो दरवाजा खोलती है, मगर बाहर चातियोन खड़ा होता है। ये देखकर शमसा दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है तो चातियोन कहता है, मेहमान के मुंह पर दरवाजा बंद करना नामुनासिब है। वो पूरी कुव्वत के साथ धकेल कर अंदर दाखिल हो जाता है। शमसा कहती है, दफा हो जाओ यहाँ से। जवाबन चातियोन से जोरदार थप्पड़ रसीद करता है। लैला कमांडर के हाथ पर काट
مارتے साथ ही वहाँ से भाग पड़ती है। चात्योन का कोई एक आदमी भी उसके पीछे नहीं जाता और चात्योन कहता है वो हमारी पैगाम रसा कबूतर है, अब वो सलाउद्दीन की तरफ जाएगी, सलाउद्दीन खुद अपने पैरों से अपनी मौत की तरफ आएगा। ये सुनकर शमसा बहुत परेशान हो जाती है। उधर काजी फाजिल आगे बढ़ रहे होते हैं कि सामने से कामिल उनके पास आता है और कहता है काजी फाजिल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ, इस बार जिंदगी और मौत का मामला है। ये सुनकर काजी फाजिल बहुत परेशान हो जाते हैं। इधर चात्योन कमांडर से कहता है घर के चारों तरफ तीरंदाज खड़े कर दो, जब सलाउद्दीन उस खूबसूरत आवाज वाली शहजादी को बचाने के लिए आएगा वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। ये सुनते साथ ही कमांडर सिपाहियों के साथ चला जाता है। शमसा कहती है तुम शैतान से भी बड़े शैतान हो चात्योन, उसे खुदा की तरफ से निकाला गया, जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है तुमको बिल्कुल भुला दिया गया है। ये सुनते साथ ही चात्योन से दबोच लेता है और कहता है अपने आप को बेकार में ना थकाओ, मैं कहता था कि औरतों के लिए मौत का खतरा मोल लेना बेवकूफी है, लेकिन अब मैं जब तुम्हें देखता हूँ तो मैं सलाउद्दीन पर इल्जाम नहीं लगा सकता। कुछ में मालिक लाड़गाई से कहता है मुझे खुदा से बस यही उम्मीद थी कि तुम अच्छी खबर लाओगे। डरा हुआ बाल्डोन बहन से गले लगा होता है और लाड़गाई कहता है कब्रस के गंदुम अब आपकी है, लोग अब भूखे नहीं रहेंगे। इधर उधर देखने के बाद मालिक पूछता है लाड़जोम कहाँ है। सबीला भी पूछती है लाड़जोम कहाँ है, वो यहाँ तुम्हारे साथ क्यों नहीं है। मालिक कहता है लाड़गाई खामोश क्यों हो, क्या सूरत हाल है। सबीला गमगीन होते हुए कहती है लाड़जोम को क्या हुआ है बोलो। तो लाड़गाई कहता है हम जब ताजुर से गंदम खरीद रहे थे, सुल्तान नूरुद्दीन से ताल्लुक रखने वाले मुसलमान वहाँ पहुंचे। ये सुनते साथ ही सबीला की आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। दरवाजा खुलता है और लाड़जोम की लाश वहाँ लाई जाती है। ये देखते साथ ही सबीला ज्योम ज्योम पुकारते हुए उसकी जानिब बढ़ती है। मालिक भी गमगीन हो जाता है। सबीला भागते हुए गिर जाती है तो बाल्डोनों से सहारा देता है। कायरा में लैला मुसलसल भाग रही होती है। भागते भागते वो सराय के पास से गुजरती है तो सराय वाला उसे रोकते हुए कहता है रुको बेटी यहाँ हो, क्या हुआ है। तो लैला कहती है मेरी माँ और शमसा बहन। सराय वाला पूछता है उन्हें क्या हुआ है। तो लैला कहती है एक आदमी जबरदस्ती घर में घुस आया, वो उन्हें मार डालेगा। सराय वाला परेशान होते हुए पूछता है वो आदमी कैसा लगता है। तो लैला कहती है सुर्ख दाढ़ी वाला आदमी, बराए मेहरबानी हमारी मदद करें। तो सराय वाला कहता है ठीक है पुरस्कून हो जाओ। ये कहते साथ ही वो उसे लेकर निकल पड़ता है। कुछ में सबीला रो रही होती है। मालिक उसे हौसला देता है और कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ बादशाह के तौर पर नहीं बल्कि बाप के तौर पर मैं लाड़जोम के कातलों को सजा दूंगा। अमन का दौर खत्म हो गया, मैं सुल्तान नूरुद्दीन को अपने गजब का मजा चखाऊंगा। फिर खड़े होकर कहता है मुहिम की तैयारियां शुरू की जाएं, हम मिस्र जा रहे। और फौर खलील बालन के पास मौजूद होते हैं। इस समय सराय वाला लैला के साथ वहाँ आता है और लैला कहती है अमीर सलाउद्दीन कहाँ है। ये सुनते साथ ही एक तरफ से सलाउद्दीन भी सामने आते हैं और कहते हैं लैला तुम यहाँ। उधर चात्योन शमसा और गुलजारा के पास बैठा सेब खा रहा होता है। कमांडर वहाँ पे आकर चात्योन से कहता है जैसा कि आपने हुक्म दिया था मैंने तीरंदाज खड़े कर दिए हैं। चात्योन हंसते हुए कहता है खूब बहुत खूब, तो जब तक हमारा मेहमान नहीं आता तब तक हम अच्छा वक्त गुजारते हैं, क्या कहती हो शमसा। मिसाल के तौर पर तुम्हारी खूबसूरत आवाज को हम भी सुने। मगर शमसा कहती है हरगिज नहीं। ये सुनते साथ ही चात्योन गुलजारा को दबोच कर खंजर उसके गले पर तान लेता है और कहता है शायद एक गाने के लिए मासूम औरत को मरने की इजाजत नहीं दोगी शमसा। शमसा के ना गाने पर वो गुलजारा के गले पर जोर बढ़ाता है तो शमसा कहती है ऐसा मत करो, मैंने तुमसे कहा कि ऐसा मत करो। चात्योन कहता है अगर तुम थोड़ी और जिद करती हो। मगर शमसा कहती है ठीक है मैं गाऊंगी। इधर घोड़े पर सवार सलाहुद्दीन ये भी तने तनहा आगे बढ़ रहे होते हैं। लैला की आवाज गूंजती है वो आदमी शैतान से भी बदतर है, उसकी दाढ़ी आग के रंग की है। मेरी माँ और शमसा बहन के साथ वो कुछ बुरा ना कर दे, जल्दी पहुंचे। इन अल्फाज के गूंजने के साथ सलाहुद्दीन भी घोड़े की रफ्तार मजीद बढ़ाते हैं। उधर चात्योन शमसा से कहता है शमसा तुम्हें मेरी आखिरी तंबीह है, इसके बाद ये खामोश हो जाएगी। इस कमरे से सुनने वाली पहली आवाज या तो तुम्हारी आवाज होगी या वो आवाज जो तुम्हारी दोस्त की मौत के वक्त की होगी। बहते हुए आंसू के साथ शमसा गाने लग जाती है वो आंखें मेरी है माँ, मैं पहले से ज्यादा अजनबी हूँ, ये मोहब्बत मेरे दिल में है, ये लामतनाही दर्द है, वो आंखें मुझे रुलाती हैं, मैं पहले से ज्यादा अजनबी हूँ। उधर सलाहुद्दीन भी मुसलसल कायरा के जानिब रवान दवा होते हैं। उनके साथ साथ शमसा की आवाज गूंजती है ये मोहब्बत मेरे दिल में है, ये लामतनाही दर्द है, मेरे रूह शिकंजे में है। आपकी आंखें आंसू से भर आई, मैं रोती हूँ बहुत रोती हूँ, मैं नहीं जानती कि मुझे क्या हुआ है। मेरा सबसे करीबी दोस्त, ये वो रात है जो मेरी रूह को घेर लेती है। मैं किससे जुड़ी हुई हूँ। ए तन्हान दे रे, मेरी तकलीफों की शिफा दे, मेरे दिल के जख्मों को ठीक कर ज्यादा से ज्यादा गहराई से। गाने के बाद शमसा कहती है अब छोड़ो मैंने सुना दिया है। तो चात्योन कहता है तुमने कितना शानदार गाया, यकीनन मैं इसे छोड़ दूंगा। ये कहते साथ ही चात्योन उसका गला काट डालता है। ये देखकर शमसा चिल्ला उठती है गुलजारा, और गुलजारा बेजान होकर जमीन पर गिर जाती है। चात्योन कहता है मैं अपना वादा पूरा करता हूँ शमसा, मेरे हाथ में आने वाले एक भी मुसलमान के जिंदा ना बच पाने की मैंने खुदावंद से कसम खाई है। शमसा गुस्से से कहती है अपने मुंह से खुदावंद का नाम ना लो। उधर सलाहुद्दीन भी मिस्र के पास पहुंच रहे होते हैं। इधर शमसा गुलजारा के पास बैठी रो रही होती है। चात्योन और कमांडर पे मजे में बैठे होते हैं। शमसा कमांडर का खंजर निकालकर चात्योन पर हमला करती है, मगर चात्योन उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे धकेलते हुए कहता है शुक्र करो मुझे तुम्हारी जरूरत है, वरना जो कुछ तुमने किया उसका ऐसा बदला लेता कि यहाँ पड़ी औरत तक बोल पड़ती। वो मेरा शुक्रिया अदा करती कि मैंने इस पे रहम किया। फिर कमांडर से कहता है बांध दो इसे। उधर काले चौके में मलबूस एक शख्स घोड़ा दौड़ा रहा होता है और वो शख्स घोड़े को दौड़ाता ही चला जाता है। कुछ में मालिक की फौज तैयार खड़ी होती है। बुलंदी पर खड़ी सबीला गुस्से में लड़काई को देख रही होती है। इसलिए मैं जंगी लिबास में मलबूस से मालिक बाहर आता है और घोड़े पर सवार होकर अपने सिपाहियों से कहता है खुदावंद की बादशाहत के मुअज़्ज़ज़ फौजियों, मेरे फौजियों, हमारी जमीन हमारी साख, ये वक्त उन लोगों के खिलाफ लड़ने का है जो हमारी सरजमीन पर नजरें जुमाए हुए हैं। हमारी मुकद्दस किताब कहती है कि जो मेरी खिदमत करना चाहता है मेरे पीछे आए, और मैं तुम्हारा बादशाह मालिक, मैं तुम्हें खुदावंद के रास्ते की तरफ दावत दे रहा हूँ। फतह उनकी है जो उसके रास्ते से नहीं हटते। ये सुनते साथ ही सिपाही तलवारें लहराते हुए बादशाह मालिक जिंदाबाद, बादशाह मालिक जिंदाबाद के नारे बुलंद करते हैं। विलियम भी जोश और खरोश से नारे लगा रहा होता है, मगर लाडगाई की नजरें मुसलसल सबीला पर जमी होती हैं। उधर आगे बढ़ते हुए यारोकी शेर को से कहता है अमीर शेर को जब हम मिस्र लेंगे, जो कि हम लेंगे ये वाज़ेह है, तब मिस्र के तख्त पे कौन बैठेगा। तो शेर को कहते हैं सुल्तान नूरुद्दीन जिसे हुक्म देंगे वही बैठेगा यारोकी। ये सुनकर यारोकी कहता है देखते हैं कि हमारे सुल्तान अपने खानदान को छोड़कर अय्यूबियों के लिए दिखाई जाने वाली सखावत को तूल देते हैं या नहीं। शेर को उसकी इस बात का जवाब नहीं देते। उधर हम देखते हैं कि काले चौके में मलबूस घुड़सवार आबोताब के साथ कायरा में दाखिल होता है और उसकी रफ्तार इस कदर तेज होती है कि छतों पर मौजूद तीरंदाज उसका निशाना नहीं ले पाते। सुलेबी सिपाही बहुत कोशिश करते हैं मगर वो भागता ही चला जाता है और वो सब के सब उसके पीछे जाते हैं। कमरे में चात्योन शमसा से कहता है क्या
तुम जानती हो खूबसूरत लड़की, मुझे इंतजार बिल्कुल पसंद नहीं है। हैरत है तुम्हारा ये शहजादा या वो तुमसे इतना प्यार नहीं करता जितना हम सोचते हैं। क्या कहती हो? ये कहते साथ वो उसके पास बैठ जाता है तो शम्स उसके चेहरे पर थूक देती है। चातलियन हंसते हुए कहता है, तुम जानती हो तुमने अपने जीने के इम्कानात को खत्म कर दिया है, यहाँ तक कि तुम्हारी खूबसूरती भी तुम्हें नहीं बचा सकती। दुआ करो कि तुम्हारा आशिक जल्दी से आ जाए, वरना तुम वहाँ पड़ी लाश के पास जाने के लिए मेरी मिन्नतें करोगी। इसलिए में एक सिपाही आकर कहता है, जनाब कोई घुड़सवार करीब आ रहा है। ये सुनते साथ ही चातलियन निकल जाता है। बाहर पहुंचकर वो घुड़सवार रुक जाता है। इसलिए में चातलियन वहाँ आता है तो वो घुड़सवार सलाहुद्दीन अय्यूबी नहीं बल्कि बालेन होता है। ये देखकर चातलियन चौंक जाता है और कहता है, बालेन तुम? जबकि सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने साथियों के साथ एक बुलंद इमारत की खिड़की से ये सारा मंजर देख रहे होते हैं और उस समय को याद करते हैं जब लैला ने उनसे कहा था, अमीर सलाहुद्दीन आपको ने बचाना है। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी जाने लगे थे तो काजी फाजिल ने उन्हें रोक दिया था और कहा था, रुको सलाहुद्दीन रुको, ना जाओ, ये एक जाल है सलाहुद्दीन, वो तुम्हें मार डालेंगे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, भले ही ये जाल हो, शम्स उनके कब्जे में है। काजी फाजिल ने फिर से उन्हें रोकते हुए कहा था, उन्होंने तुम्हें फंसाने के लिए शम्सा का इंतखाब किया है। घर तीरंदाजों से घिरा हुआ है, मिस्री और सुलेबी गात लगाए बैठे हैं, वो तुम्हारे वहाँ जाते साथ ही तुम्हें मार डालेंगे, तुम्हें भी और शम्सा को भी। मिस्र की तकदीर तुम पर मुनसिर है सलाहुद्दीन, अल्लाह का वास्ता मत जाओ। ये सुनते साथ ही सलाहुद्दीन अय्यूबी सोच में पड़ गए थे और काफी देर की सोच विचार के बाद उन्होंने बालेन से कहा था, तुम जाओगे बालेन? बालेन ने हैरानगी से कहा था, मैं? इस ख्याल के बाद चातलियन तीरंदाजों को रोक देता है और बालेन घोड़े से उतरकर उसके पास आता है। अंदर से शम्सा भी बालेन को देख जाती है। बाहर चातलियन बाजू फैलाते हुए कहता है, खुदावंद का शुक्र है कि सलाहुद्दीन ने तुम्हें छोड़ दिया, हालांकि मैं। तो बालेन एकदम से कहता है, तुम मुझे बचाने आए हो चातलियन? चातलियन कहता है, तुम्हारा दोस्त सलाहुद्दीन कहाँ है? तुम उसके हाथ से कैसे बच गए? जवाब में बालेन कहता है, सलाहुद्दीन एक ज़हीन आदमी है, उसे एहसास हो गया कि वो फंस गया है तो मुझे छोड़कर चला गया। ये कहते साथ ही बालेन उस समय को याद करता है जब उसने सलाहुद्दीन अय्यूबी से कहा था, तुम अपने कैदी से मदद मांग रहे हो सलाहुद्दीन, ये बहुत मुज़ायका खेज है, मैं ऐसा क्यों करूं? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा था, दरगाम के लिए मैदान जंग में लड़ाई की यादगार, बाकरास किले की यादगार। ये सुनते साथ ही बालेन ने उस समय को याद किया था जब कायरा में सलाहुद्दीन अय्यूबी और बालेन की लड़ाई को रोकने के लिए शम्सा ने दरगाम से कहा था कि लड़ाई फौरी तौर पर खत्म करो ताकि हमारे शानदार त्योहार में मेरा गाना सुना जा सके। शम्सा के ये कहते साथ ही दरगाम ने लड़ाई रोक दी थी। इस ख्याल के बाद सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बालेन से मजीद कहा था, बालेन तुम्हारी जिंदगी उसके मकरूज है। इस ख्याल के बाद बालेन चातलियन से कहता है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम चीजों को मजीद पेचीदा बनाने का इरादा रखते हो। तो चातलियन कहता है, क्या कहना चाहते हो तुम? तो बालेन कहता है, एक मासूम औरत के पीछे छुप रहे हो, मजीद ये कि वो औरत ईसाई है, उस औरत को फौरन रिहा करो चातलियन। तो चातलियन कहता है, यानी कि तुम चाहते हो कि मैं शम्सा को छोड़ दूं? हाँ, तुम उसे लेने आए हो, ठीक है तुम उसे ले जा सकते हो। चलो बालेन तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, चलो आगे बढ़ो। ये सुनकर बालेन जैसे ही आगे बढ़ता है चातलियन उसके गले पर तलवार तान लेता है और कहता है, आह बालेन आह। ये मंजर देखकर सलाहुद्दीन भी कहते हैं, ये पागल आदमी क्या कर रहा है? और तुम बालेन को बचाओ, मैं शम्सा को लेने जाऊंगा, खलील मेरे साथ आओ। ये कहते और सुनते साथ वो अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। नीचे चातलियन बालेन से कहता है, एवलेन के कौंत बनने के लिए तुम इतने बेवकूफ बन रहे हो, बहरहाल तुम कब्र में जाओ, मैं एवलेन जाऊंगा। ये सुनकर बालेन को बहुत गुस्सा आता है। चातलियन मजीद कहता है, मैं तुम्हें तुम्हारे उस भाई के पास भेजूंगा जिसे तुम बहुत प्यार करते हो बालेन, तुम भी उसकी तरह मुसलमानों से मोहब्बत करने वाले गद्दार हो। तो बालेन कहता है, शायद वो तुम हो जिसे अलविदा कहा जाएगा। उसके ये कहते साथ ही बजंतीनियों को तीर आ लगते हैं और बालेन चातलियन को लात मारकर पीछे धकेल देता है। फिर अगले लम्हे एथिस अपने साथियों के साथ दावा बोल देते हैं। बालेन भी स्लेबी सिपाही को काटना शुरू कर देता है। इदरीस, एथिस, उर्फा, बोजोक और इब्राहिम डटकर उनका मुकाबला करते हैं। किसी को तीर मारकर, किसी को तलवार से और किसी में तीर ही घूम दिया जाता है। चातलियन के सिपाही मुसलसल करते ही चले जाते हैं। बालेन एक साथ कईयों को काट के रख देते हैं। भी कमरे में दाखिल होते साथ ही सुलेबी सिपाही को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। उन्हें देखकर शम्सा बहुत खुश होती है और कहती है, सलाहुद्दीन मैं जानती थी कि तुम आओगे। सलाहुद्दीन भी एकदम से रस्सियां खोलने लग जाते हैं और पूछते हैं, तुम ठीक हो ना? तो शम्सा कहती है, मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं लैला को क्या जवाब दूंगी, मैं उसकी माँ को नहीं बचा सकी। सलाहुद्दीन भी कहते हैं, शम्सा भी चलो। ये कहते साथ वो उसे लेकर कमरे से बाहर आते हैं और कमरे के बाहर खलील से कहते हैं, शम्सा को किसी महफूज ठिकाने पर ले जाओ। शम्सा कहती है, मुझे लैला को तलाश करना है। तो सलाहुद्दीन भी कहते हैं, लैला बिल्कुल ठीक है, परेशान ना हो। ये सुनते साथ ही शम्सा खलील के साथ चली जाती है और सलाहुद्दीन भी अपने साथियों की जानिब बढ़ते हैं। उन्हें आता हुआ देखकर चातलियन सिपाहियों से कहता है, हम पीछे हट रहे हैं गुणों की तरफ। ये कहते साथ ही चातलियन सिपाहियों के साथ भाग पड़ता है, जबकि वहां रह जाने वाले सिपाहियों को सलाहुद्दीन भी बालेन और उनके सिपाही जहन्नुम वासिल कर देते हैं। लड़ाई के इख्तिताम पर सलाहुद्दीन भी बालेन से कहते हैं, क्या तुमने देखा, बादशाह मालिक ने तुम्हें इसे बचाने नहीं बल्कि मारने के लिए भेजा था, चलो गुणों की तरफ। ये कहते सुनते साथ ही वो सभी भाग पड़ते हैं। उधर शेर को यारुकी और सिपाहियों के साथ कुएं में से पानी पी रहे होते हैं। फिर यारुकी से कहते हैं, पिछले दस्तों को इतला भेजो यारुकी, जब हम रास्ते पर रवा दवा होंगे तो वो यहाँ आराम कर सकते हैं। यारुकी कहता है, हमारा परवरदिगार हमारे रास्ते को फतह से इम्कनार फरमाए इंशाअल्लाह। पानी पीने के बाद शेर को जैसे ही आगे बढ़ते हैं लड़खड़ा जाते हैं। ये देखकर यारुकी तेजी से उनके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ है शेर को? सिपाही भी लड़खड़ाना शुरू हो जाते हैं। एक के बाद एक सिपाही अपने गले को पकड़ लेता है और सबको उल्टियां लगना शुरू हो जाती हैं। ये देखकर यारुकी चौंक जाता है और जैसे ही बहादुर बहादुर कहता हुआ आगे बढ़ता है वो भी लड़खड़ा जाता है। वो अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कहता है, पिछले दस्ते को खबर भेजो, कोई भी पानी नहीं पिएगा, पानी जहर आलूद है। ये कहते साथ ही यारुकी गिर जाता है तो उसका सिपाही भागता भागता उसके पास आता है। सिपाहियों के साथ साथ घोड़े भी बहुत तकलीफ में होते हैं। नाज़रीन इसके बाद हम देखते हैं कि इमालेक एक बहुत बड़ी फौज लेकर कायरा की जानिब रवाना होता है। लड़का आगे बढ़ते हुए कहता है, निजाम को तहस नहस करने वाले जंगी मेरी तलवार का मजा चखेंगे। विलियम इमालेक से कहता है, मेरे बादशाह आपके हुक्म पर सवाल करना मेरा हक नहीं और ना ही मेरी आदत है, लेकिन क्या आपने लड़काई को कुछ ज्यादा जिम्मेदारियां नहीं दे दी? तो इमालेक कहता है, जंग में शक की गुंजाइश नहीं है विलियम, लड़काई थोड़ा लालची जरूर है मगर अच्छा कमांडर है। टेम्पलर्स में इसका बहुत रोब है, इसलिए हमें इसकी जरूरत है। मिस्र मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है विलियम, इस बार गलती की कोई गुंजाइश नहीं, हर चीज हमारे मंसूबे के मुताबिक ही हो रही है ना? विलियम कहता है, बादशाह के बहादुर खिदमतगारों ने आपके हुक्म की पूरी तरह तामील की है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि शाम से निकलने वाली फौज कायरा को देखे बगैर फना हो जाएगी। वो सब मुसलसल आगे बढ़ते ही चले जाते हैं। उधर शेर को सिपाहियों और यारुकी को उल्टियां लगी होती हैं। बहादुर सही सलामत सिपाहियों से कहता है, तुम पिछली तरफ जाओ और तुम लोग दूसरी तरफ, हर किसी को ये मशरूब पिलाओ, अच्छे से तकसीम करो। ये कहते साथ ही वो खुद आगे बढ़कर वो मशरूब यारुकी को पिलाता है। सिपाही भी अपने साथियों की मदद कर रहे होते हैं। शेर को दुआ मांगते हुए कहते हैं, ऐ रब हम अदना से इंसान तेरे नाम का परचम उठाए निकले हैं, या रब हमारी मदद फरमा। मशरूब पीते हुए यारुकी शेर को की जानिब इशारा करता है तो बहादुर एकदम से आगे बढ़कर मशरूब शेर को पिलाता है और कहता है, हुजूर थोड़ा सा और पिए, इससे आपको क्या करने में मदद मिलेगी। यारुकी और शेर को बिल्कुल
बेढहाल पड़ जाते हैं। ये देखकर बहादुर बहुत परेशान हो जाता है और यारुकी के पास जाकर मेरे अमीर पुकारता है। उधर एक और कुएं के पास कार्तिकेन हाथ धो रहा होता है। अल्बेज उसके पास आकर कहता है मिस्र इस तरफ है और हलब इस तरफ है, अब बताएं आपकी मंजिल क्या है, मिस्र या हलब। ये सुनते साथ ही कार्तिकेन सुल्तान की बातों को याद करता है। अगर तुम दोनों महाजों से भाग रहे हो तो फिर होशियार रहना, तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें तलाश कर लूंगा और तुम अजाब से नहीं बच पाओगे। मगर इसके बावजूद वो कहता है हलब में बहन खातून के पास चलो चलते हैं। ये कहते साथ वो अपने घोड़े को पकड़ता है मगर घोड़ा नहीं चलता। तो वो कहता है चलो तल पर चलो, जिद क्यों कर रहे हो। वो बहुत कोशिश करता है मगर घोड़ा एक कदम भी नहीं उठाता। करातेगन उसे झड़कते हुए कहता है तुमने कब से मेरा हुक्म मानना छोड़ दिया है, हलब की तरफ चलो। मगर घोड़ा मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। करातेगन कहता है तुम्हारी माँ एक खच्चर थी, ये कैसे जिद है। करातेगन घोड़े को बहुत खींचता है मगर घोड़ा एक कदम नहीं उठाता। ये देखकर अल्बेज कहता है हुजूर जानवर को मजबूर ना करें, रुक जाए हुजूर रुक जाए, क्या आप देख नहीं रहे कि जानवर हरकत नहीं कर रहा। घोड़े को छोड़कर करातेगन आगे बढ़ता है तो घोड़ा दूसरी तरफ हो जाता है। करातेगन कुछ कदम आगे बढ़ता है तो उसे वो बुजुर्ग नजर आते हैं। उनकी आवाज गूंजती है वो जिसने तुमने अपनी रूह फूंक दी, वो सांसों का मालिक जो तेरे सीने में है। करातेगन वो तुमसे कह रहा है कि तकदीर से लड़ाई बंद करो, अपनी तकदीर के मुताबिक काम करो, जिसने तुम्हारी तकदीर लिखी है उसे तलाश करो, तुम्हें जो करने को कहा गया है वो करो, मुसीबत के रास्ते को दवा से खत्म करो। करातेगन जैसे ही घोड़े की जानिब देखकर वापस पलटता है तो बुजुर्ग वहां नहीं होते। तो करातेगन गहरी सोच में पड़ जाता है। उधर कायरा से निकलने के बाद चातलियन और उसके सिपाही घोड़े दौड़ा रहे होते हैं। सलाउद्दीन भी बालेन और अपने साथियों के साथ उसके ताकुब में होते हैं। मगर कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो अपने घोड़े रोक लेते हैं क्योंकि सामने उन्हें सुलेबी फौज का एक समुंदर नजर आता है। ताहद्दे निगाह सुलेबी फौज हर तरफ फैली होती है। चातलियन भी जाकर उनके साथ शामिल हो जाता है। सलाउद्दीन भी मुसलसल सुलेबी फौज को देख रहे होते हैं। उनके साथी भी हैरान होते हैं। अपने सामने चंद दुश्मन देखकर मार्ले कहता है विलियम क्या हम बेकार में इतनी बड़ी फौज लाई, देखो मुट्ठी भर सिपाही हमारे सामने है, जंगी फौज कौमों की खुराक बनने वाली है। तो विलियम कहता है ये अच्छी बात है, आपको इस अजमत के साथ मिस्र में दाखिल होना चाहिए। लाडगाय कहता है फतह नागुज़ीर है, मुझे यकीन है कि तारीख लिखने वाले इस जंग को अच्छी तरह कलमबंद करेंगे, आप एक फाते के तौर पर कुछ वापस जाएंगे। चातलियन भी बहुत खुश हो रहा होता है। ये मंजर देखकर बालेन सलाउद्दीन ईवी से पूछता है अब क्या करोगे, क्या तुम अपनी तलवार मेरी गर्दन पर रखकर उन्हें धमकी दोगे। हार मान लो सलाउद्दीन, तुम अपने रास्ते से भटक गए हो और अब खत्म होने वाले हो, तुम जंग हार गए। ये सुनते साथ ही सलाउद्दीन भी तलवार बेनियाम करते हैं और तलवार बालेन की जानिब करते हुए कहते हैं तुम जा सकते हो, जाओ तुम आजाद हो। यह सुनकर बालेन चौंक जाता है और कहता है कैसे और क्यों। सलाउद्दीन भी मजीद कहते हैं अपनी तलवार ले लो और उस सफ में शामिल हो जाओ जहाँ से तुम्हारा ताल्लुक है, बादशाह के पास जाओ जिसकी तुम खिदमत करते हो। मैंने कहा तलवार लो, क्या तुम मुझे सुन नहीं रहे बालेन। सख्ते में आया हुआ बालेन तलवार ले लेता है और कहता है तुम पागल हो, क्या तुम इन 6 सिपाहियों के साथ इतनी बड़ी फौज को ललकारोगे। सलाउद्दीन कबूल कर लो तुम जंग हार गए हो, कम से कम अपनी जान तो बचाओ। मगर सलाउद्दीन ये भी कहते हैं मैं अल्लाह की गैबी फौज की कसम खाता हूँ कि मैं लड़ूंगा, ये मेरी शहादत का वक्त है। बालेन फिर से कुछ कहने लगता है तो सलाउद्दीन ये भी कहते हैं अपनी सफ में शामिल हो जाओ बालेन। ये सुनते साथ ही बालेन मारले की जानिब बढ़ जाता है। बालेन को जिंदा सलामत वापस आता हुआ देखकर चातलियन और लाडगाई को बहुत गुस्सा आता है। अपनी आंखें बंद करते हुए सलाउद्दीन ये भी दिल में कहते हैं हक की राह में हमारे कदम जमा दे और हमें इस कौम पर फतह अता फरमा ए अल्लाह। ये कहते साथ ही सलाउद्दीन ये भी अपने 5 साथियों में से आगे बढ़ते हैं और उनकी जानिब मुड़ते हुए तलवार बेनियाम करते हैं। फिर कहते हैं अपनी तलवारें खींचो, अपने तीर कमानों में लगाओ। ये सुनते साथ ही उनके जांबाज तलवारें बेनियाम कर लेते हैं। सलाउद्दीन ये भी मजीद कहते हैं दुआ है कि हमारी तलवारें जुल्फकार की तरह मजबूत हों, हमारे तीर कुफर के अंधेरों को रेजा रेजा कर दें। ए अल्लाह जिसका तूने हमसे वादा किया था हमें वो फतह नसीब फरमा, शर्फ हमारा और शिकस्त दुश्मन की हो। हम अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं मगर मरते नहीं हैं, ये याद रखो शहीद नहीं मरते। उन्हें देखते हुए बालेन बहुत ज्यादा परेशान होता है मगर बाकी सब के सब बिल्कुल मुतमईन खड़े होते हैं। सलाउद्दीन ये भी और उनके साथियों के चेहरों पर बिल्कुल कोई खौफ नजर नहीं आता मगर ऐसे नजर आता है कि बालेन उनके लिए काफी ज्यादा फिक्रमंद है। और नाज़रीन इस मंजर के साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है।